منٹو کا افسانہ باسط۔ باسط بالکل رضامند نہیں تھا، لیکن ماں کے سامنے اس کی کوئی پیش نہ چلی۔ اول تو اس کو اتنی جلدی شادی کرنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس کے علاوہ وہ لڑکی بھی اسے پسند نہیں تھی جس سے اس کی ماں اس کی شادی کرانے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ بہت دیر تک ٹالتا رہا، جتنے بہانے بنا سکتا تھا اس نے بنائے، لیکن آخر ایک روز اس کو ماں کی اٹل خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی پڑا۔ دراصل انکار کرتے کرتے وہ بھی تنگ آ گیا تھا، چنانچہ اس نے سوچا یہ بک ختم ہی ہو جائے تو اچھا ہے، ہونے دو شادی، کوئی قیامت تو نہیں ٹوٹ پڑے گی، میں نبھا لوں گا۔ اس کی ماں خوش ہوئی، لڑکی والے اس کے عزیز تھے اور وہ عرصہ ہوا ان کو زبان دے چکی تھی۔ جب باسط نے ہاں کی تو وہ تاریخ پکی کرنے کے لیے لڑکی والوں کے ہاں گئی۔ انہوں نے ٹال مٹول کی تو باسط کی ماں کو بہت غصہ آیا۔ سعیدہ کی ماں، میں نے اتنی مشکل سے باسط کو رضامند کیا ہے، اب تم تاریخ پکی نہیں کر رہی ہو، شادی ہوگی تو اسی مہینے کی 20 کو ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی، اور یہ بات 16 آنے پکی ہے، سمجھ لیا؟ دھمکی نے کام کیا، لڑکی کی ماں بالآخر راضی ہو گئی۔ سب تیاریاں مکمل ہوئیں، 20 کو دلہن گھر میں تھی۔ باسط کو وہ گو پسند نہیں تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ نبھانے کا فیصلہ کر چکا تھا، چنانچہ وہ اس سے بڑی محبت سے پیش آیا، اس پر بالکل ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اس شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ کہ وہ زبردستی اس کے سر مڑ دی گئی ہے۔ نئی دلہنیں عام طور پر بہت شرمیلی ہوتی ہیں، لیکن باسط نے محسوس کیا کہ سعیدہ ضرورت سے زیادہ شرمیلی ہے۔ اس کے اس شرمیلے پن میں کچھ خوف بھی تھا، جیسے وہ باسط سے ڈرتی ہے۔ شروع میں باسط نے سوچا کہ یہ چیز دور ہو جائے گی، مگر وہ بڑھتی ہی گئی۔ باسط نے اس کو چند روز کے لیے میکے بھیج دیا۔ واپس آئی تو اس کا خوف آلود شرمیلا پن ایک حد تک دور ہو چکا تھا۔ باسط نے سوچا 1-2 مرتبہ اور میکے جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، مگر اس کا یہ قیاس غلط نکلا۔ سعیدہ پھر خوفزدہ رہنے لگی۔ باسط نے ایک روز اس سے پوچھا، سعیدہ تم ڈری ڈری کیوں رہتی ہو؟ سعیدہ یہ سن کر چونکی۔ نہیں تو۔ باسط نے اس سے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا، آخر بات کیا ہے؟ خدا کی قسم مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے۔ کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ میری ماں اتنی اچھی ہے، وہ تم سے سانسوں کا سا سلوک نہیں کرتی، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، پھر تم ایسی صورت کیوں بنائے رکھتی ہو کہ معلوم ہوتا ہے تمہیں یہ خوف ہے کہ کوئی تمہیں پیٹے گا؟ یہ کہہ کر اس نے سعیدہ کا منہ چوما۔ سعیدہ خاموش رہی، اس کی آنکھیں البتہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئیں۔ باسط نے اس کو اور پیار کیا اور کہا، تمہیں ہر وقت ہنستے رہنا چاہیے، لو اب ذرا ہنسو میری جان۔ سعیدہ نے ہنسنے کی کوشش کی۔ باسط نے پیار سے اس کو تھپکی دی، شاباش، اسی طرح مسکراتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے ہر وقت۔ باسط کی یہ محبت ظاہر ہے بالکل مصنوعی تھی، لیکن سعیدہ کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ صرف اپنی ماں کی خاطر چاہتا تھا کہ سعیدہ سے اس کا رشتہ ناکام ثابت نہ ہو۔ اس کی ماں اپنی شکست کبھی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں شکست کا منہ دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے باسط کی انتہائی کوشش یہی تھی کہ سعیدہ سے اس کی نبھ جائے۔ چنانچہ اپنے دل میں سعیدہ کے لیے اس نے بڑے خلوص کے ساتھ مصنوعی محبت پیدا کر لی تھی۔ اس کی ہر آسائش کا خیال رکھتا تھا، اپنی ماں سے سعیدہ کی چھوٹی سی بات کی بھی تعریف کرتا تھا۔ جب وہ یہ محسوس کرتا کہ اس کی ماں بہت مطمئن ہے، اس بات سے مطمئن کہ اس نے باسط کا رشتہ ٹھیک جگہ کیا، تو اس کو دلی خوشی ہوتی۔ شادی کو 1 مہینہ ہو گیا۔ اس دوران میں سعیدہ کئی مرتبہ میکے گئی۔ باسط کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یوں اس کا خوف آلود شرمیلا پن دور ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ یہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اب تو سعیدہ وحشت زدہ دکھائی دینے لگی تھی۔ باسط حیران تھا کہ بات کیا ہے۔
उसके बारे में उसने माँ से कोई बात ना की, इसलिए कि उसे यकीन था कि वो उसको डांट पिलाएगी। बकवास ना करो, मुझे मालूम था तुम जरूर एक रोज उसमें कीड़े डालोगे। बासित ने सईदा ही से कहा, मेरी जान, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? सईदा चौंक उठी। जी? उसके चौंकने पर बासित ने यूं महसूस किया जैसे उसने सईदा की किसी दुखती रग पर जोर से हाथ रख दिया था। लहजे में और ज्यादा प्यार भरकर उसने कहा, मैंने पूछा था कि अब तुम और ज्यादा खौफजदा रहने लगी हो, आखिर क्या बात है? सईदा ने थोड़ी तवक्कुफ के बाद जवाब दिया, बात तो कुछ भी नहीं, मैं जरा बीमार हूं। क्या बीमारी है? तुमने मुझसे कभी जिक्र ही नहीं किया। सईदा ने दुपट्टे के किनारे को उंगली पर लपेटते हुए जवाब दिया, अम्मी जान इलाज करा रही हैं मेरा, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। बासित ने सईदा से और ज्यादा दिलचस्पी लेना शुरू की तो उसने देखा कि वो हर रोज छुपकर कोई दवा खाती है। एक दिन जबकि वो अपने कुफ्ल लगे ट्रंक से दवा निकाल कर खाने वाली थी, वो उसके पास पहुंच गया। वो जोर से चौंकी। सफूफ की खुली हुई पुड़िया उसके हाथ से गिर पड़ी। बासित ने पूछा, ये दवा खाती हो? सईदा ने थूक निगलकर जवाब दिया, जी हाँ, अम्मी जान ने हकीम साहब से मंगवाई थी। कुछ इफाका है इससे? जी हाँ, तो खाओ, अगर आराम ना आए तो मुझसे कहना, मैं डॉक्टर के पास ले चलूंगा। सईदा ने पुड़िया फर्श पर से उठाई और सर हिलाकर कहा, जी अच्छा। बासित चला गया। उसने सोचा, अच्छा है, कोई इलाज तो हो रहा है, खुदा करे अच्छी हो जाए। मेरा ख्याल है ये डर वर कुछ नहीं, बीमारी है, दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। उसने सईदा की इस बीमारी का अपनी माँ से पहली बार जिक्र किया तो वो कहने लगी, बकवास है, खुदा के फजलो करम से अच्छी भली है, क्या बीमारी है उसे? बासित ने कहा, मुझे क्या मालूम अम्मी जान, ये तो सईदा ही बता सकती है आपको। बासित की माँ ने बड़ी बेपरवाही से कहा, मैं पूछूंगी उससे। जब सईदा से दरियाफ्त किया तो उसने जवाब दिया, कुछ नहीं खाला जान, सर में दर्द रहता है। अम्मी जान ने हकीम साहब से दवा मंगा दी थी। असल में बासित साहब बड़े वहमी हैं, हर वक्त कहते रहते हैं तुम डरी डरी सी दिखाई देती हो। मुझे डर किस बात का होगा भला? बासित की माँ ने कहा, बकवास करता है, तुम इसकी फजूल बातों का ख्याल ना करो। चंद रोज के बाद बासित ने महसूस किया कि सईदा बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है। उसका इज़्तिराब उसके रोए रोए से जाहिर था। शाम के करीब उसने बासित से कहा, अम्मी जान से मिलने को जी चाहता है, मुझे वहां छोड़ आइए। बासित ने जवाब दिया, नहीं सईदा, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। सईदा ने इसरार किया, आप मुझे वहां छोड़ आइए, मैं ठीक हो जाऊंगी। बासित ने इनकार कर दिया, वहां तबीयत ठीक हो सकती है तो यहाँ भी ठीक हो सकती है, जाओ आराम से लेट जाओ। बासित की माँ आ गई। बासित ने उससे कहा, अम्मी जान देखिए, सईदा जिद कर रही है, तबीयत उसकी ठीक नहीं, कहती है मुझे अम्मी जान के पास ले चलो। बासित की माँ ने बड़ी बेपरवाही से कहा, कल चली जाना सईदा। सईदा ने और कुछ न कहा, खामोश होकर बाहर सहन में चली गई। थोड़ी देर के बाद बासित बाहर निकला। सईदा सहन में नहीं थी। उसने इधर उधर तलाश किया मगर वो ना मिली। बासित ने सोचा ऊपर कोठे पर होगी। ऊपर गया तो गुसल खाने का दरवाजा बंद था। खटखटाकर उसने आवाज दी, सईदा। कोई जवाब ना मिला तो फिर पुकारा, सईदा। अंदर से बड़ी नहीफ आवाज आई, जी। बासित ने पूछा, क्या कर रही हो? और ज्यादा नहीफ आवाज आई, नहा रही हूँ। बासित नीचे आ गया। सईदा के बारे में सोचता सोचता बाहर गली में निकला। मोरी की तरफ नजर पड़ी तो उसमें खून ही खून था। ये खून उस गुसलखाने से आ रहा था जिसमें सईदा नहा रही थी। बासित के जहन में तले ऊपर कई ख्यालात औंधे सीधे गिरे। फिर ये गर्दान शुरू हो गई, दवा, खून, खून, दवा, डर, दवा, खून, डर। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सोचना शुरू किया। सईदा की माँ शादी की तारीख पक्की नहीं कर रही थी। उसने कहा था कि 1-2 महीने ठहर जाओ। सईदा का बार बार अपनी माँ से मिलने जाना, उसका हर वक्त खौफजदा रहना, दवा खाना और खास तौर पर आज बहुत ही ज्यादा वहशतजदा होना। बासित सारा मामला समझ गया। सईदा पेट से थी जब वो दुल्हन बनकर उसके पास आई थी, तब भी उसकी माँ की यह कोशिश थी कि हमल गिर जाए। चुनांचे आज वो चीज हो गई। बासित ने सोचा, क्या मैं ऊपर जाऊं, जाकर सईदा को देखूं या अपनी माँ से बात करूं?
माँ का सोचा तो उसको ख्याल आया कि ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो अपने बेटे की आंखों में जलील होना कभी गवारा नहीं करेगी, जरूर कुछ खाकर मर जाएगी। वो कोई फैसला ना कर सका, अपने कमरे में गया और सर पकड़कर बैठ गया। कई बार उसको सईदा का ख्याल आया कि वो खुदा मालूम किस हालत में होगी, उसके जिस्म पर, उसके दिलो दिमाग पर क्या कुछ बीता होगा और क्या बीत रहा होगा। कैसे इतना बड़ा राज छुपाएगी? क्या लोग पहचान नहीं जाएंगे? जो वो सईदा के बारे में सोचता, उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा बढ़ता जाता। उसको सईदा पर तरस आने लगा। बेचारी, मालूम नहीं बेहोश पड़ी है या होश में है। होश में भी उस पर जाने क्या गुजर रही होगी। क्या वो नीचे आ सकेगी? थोड़ी देर बाद वो उठकर सहन में गया तो सईदा नीचे आई। उसका रंग बेहद जर्द था, इतना जर्द कि वो बिल्कुल मुर्दा मालूम होती थी। उसने बमुश्किल चला जाता था, टांगे लड़खड़ा रही थीं, कमर में जैसे जान ही नहीं थी। बासित ने उसको देखा तो उस पर बहुत तरस आया। अंदर से बुर्का उठाया और उससे कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊं। सईदा ने बहुत हिम्मत से काम लिया, बासित के साथ चलकर बाहर सड़क तक गई। बासित ने तांगा किया और उसको उसकी माँ के पास छोड़ आया। माँ ने उससे पूछा, सईदा कहाँ है? बासित ने जवाब दिया, जिद करती थी, मैं उसे छोड़ आया हूं। बासित की माँ ने उसको डांटा, बकवास करते हो, जिद करने दी होती। तुम इसी तरह उसकी आदतें खराब करोगे और फिर मुझसे कहोगे कि मैंने गलत जगह तुम्हारा रिश्ता किया था। बासित ने कहा, अम्मी जान नहीं, सईदा बड़ी अच्छी लड़की है। उसकी माँ मुस्कुराई, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि वो बहुत नेक लड़की है, तुम उसे जरूर पसंद करोगे? फिर थोड़ी देर छालियां काटने के बाद एकदम बासित से मुखातिब हुई, और हाँ बासित, ये ऊपर गुसल खाने में खून कैसा था? बासित पिटा सा गया। वो कुछ नहीं अम्मी जान, मेरी नक्सीर फूटी थी। माँ ने बड़े गुस्से के साथ कहा, कमबख्त गर्म चीजें ना खाया करो, जब देखो जेबें मूंगफलियों से भरी हैं। बासित कुछ देर अपनी माँ के साथ बात करता रहा। वो उठकर कहीं गई तो बासित ऊपर गुसलखाने में गया, पानी डालकर उसको अच्छी तरह साफ किया। उसके दिल में इस बात का बड़ा इत्मीनान था कि उसने अपनी माँ से सईदा के मुतालिक कोई बात नहीं की और ना उसने सईदा पर यह जाहिर होने दिया कि वो उसका राज जानता है। वो दिल में फैसला कर चुका था कि सईदा का राज हमेशा उसके सीने में दफन रहेगा। वो काफी तकलीफ उठा चुकी थी। बासित के ख्याल के मुताबिक उसको अपने किए की सजा मिल चुकी थी। मजीद सजा देने का कोई फायदा नहीं था। खुदा करे वो जल्दी तंदुरुस्त हो जाए। अब उसके चेहरे पर वो उलझन पैदा करने वाला खौफ नहीं रहेगा। वो ये सोच ही रहा था कि नीचे उसकी माँ की चीख की आवाज आई। बासित लोटा रखकर दौड़ा नीचे गया। सब कमरे देखे, डेवड़ी में गया तो उसकी माँ फर्श पर औंधी पड़ी थी, मुर्दा। उसके सामने कूड़े वाले लकड़ी के बक्स में एक छोटा, बहुत ही छोटा सा नामुकम्मल बच्चा कपड़े में लिपटा पड़ा था। बासित को बेहद सदमा हुआ। उसने पहले उस बच्चे को उठाया, कपड़े में अच्छी तरह लपेटा और अंदर जाकर बूट के खाली डब्बे में बंद कर दिया। फिर माँ को उठाकर अंदर चारपाई पर लिटाया और उसके सरहाने बैठकर देर तक रोता रहा। सईदा को इत्तला पहुंची तो उसको अपनी माँ के साथ आना ही पड़ा। वो इसी तरह जर्द थी, पहले से कहीं ज्यादा निढाल। बासित को बहुत तरस आया। उसने कहा, सईदा, जो अल्लाह को मंजूर हो था वो हो गया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रोना बंद करो और जाओ अंदर लेट जाओ। अंदर जाने के बजाय सईदा डेवड़ी में गई। जब वापस आई तो उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द था। बासित खामोश रहा। सईदा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू साफ बता रहे थे कि वो बासित का शुक्रिया अदा कर रही है। बासित ने उससे बड़े प्यार से कहा, ज्यादा रोना अच्छा नहीं सईदा, जो खुदा को मंजूर था वो हो गया। दूसरे रोज उसने बच्चे को नहर के किनारे गड्ढा खोदकर दफन कर दिया।